Hello, in this video we will discuss about nutrition. Nutrition means portion. All living things need some food. Either they are able to prepare it by themselves, or most of the living things are dependent on others for their nutrition or food. So first is, why nutrition and what is nutrition? Because nutrition is very essential in living organisms because it provides energy, growth, repairing of tissues, maintenance of the body, for reproduction also. So, what is the substance which provides us all these things? So, this is called as food. Food is the substance which contains all the organic or inorganic elements in it, and these compounds or elements are called nutrients. These nutrients are present in our food, and we all know that there are 5 nutrients: carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals. ये 5 nutrients हैं. तो nutrients are the chemical substances which are essential for our body, for energy, growth and repairing, and for our for remaining healthy and disease free. You all know it. तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन. What is nutrition? Nutrition means obtaining food and its utilization by the body. अगर हम खाने के बाद हमारा खाना हमारे स्टमक तक नहीं पहुंचा या जाने के बाद फिर बाहर आ गया, that is not nutrition. If the food stays in our stomach, it get digested, absorbed, assimilated in our body and digested, then nutrition is finished. So, nutrition is of 2 types in living organisms. आप सबको पता है कि 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जो भी हम पढ़ेंगे हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे. तो प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. ऑटो का मतलब है सेल्फ और न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्री का मतलब है फूड. जो खुद से अपना फूड ऑब्टेन कर सके, बना सके, सिंथेसाइज कर सके, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. और ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के: ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है. ग्रीन प्लांट्स मीन्स plants which has chlorophyll in its cell. The green pigment chlorophyll is present in the cell organelle chloroplast, and it has the ability to trap the sunlight, and it helps in photosynthesis by serving energy and as a place for the synthesis of photosynthesis. So green plants are able to prepare their own food. Autotrophic nutrition green plants में है, so they are called producers. By which process? Photosynthesis.
photosynthesis. Got it? By photosynthesis, plants synthesize glucose, and glucose is stored in form of starch, and it is converted into other nutrients. So photosynthesis is the main process. Plants can synthesize fats, proteins, and these are taken by we human beings. Some non-green plants are also there. They don't have the ability for photosynthesis because they have no chlorophyll. So they have also heterotrophic nutrition. Second one is heterotrophic. Hetero means another, trophic means nutrition. तो जो दूसरे से अपना फूड ले, इसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, all animals except Euglena. Euglena is the unicellular animal which has chlorophyll, so it is the autotrophic animal. It is an exception. Heterotrophic nutrition is the method of taking ready-made food. Again, there are different modes in heterotrophic nutrition. Some animals digest their food outside their body, they just absorb the nutrients. Some take liquid diet, some take the nutrients from other animals' body, and some are symbiotic, means two organisms live together and both them are beneficial, both of them help each other, and thus they obtain their nutrition. In animals, there is a different mode of nutrition which is called holozoic nutrition. In animals means in vertebrates, animals which have well developed body, they have different organ systems, and this type of animals, most of the vertebrates have developed body, but some invertebrates have also few organ system in their body. So they have also digestive system, and they digest the food inside their digestive tract or digestive system. So first one is heterotrophy, and second one is first one is autotrophic, second one is heterotrophic. Now we will discuss about some heterotrophic nutrition in plants. We all know that in plants, some plants, you all have studied this topic in standard 7 also, but I know many of you don't have idea, you all have forgotten, so I am just revising it. So first one is parasitic nutrition. Parasitic nutrition होता है, जो पैरासाइट हैं वो दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहेंगे, उनके बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन भी लेंगे, उनका मोड, उनका मेथड्स अलग होगा, हॉस्टोरिया, उनमें रूट्स जो है वो होस्ट के बॉडी के अंदर, सेल के अंदर घुस के वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इस तरह के प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट। अब ये पैरासाइटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल अमरबेल है, जो किसी भी बड़े अच्छे पेड़ पे जो फुल्ली ग्रोन है उस पर ग्रो कर जाता है, वायर की तरह लाइट ग्रीन कलर का होता है। अब ये जो है ये हुए टोटल पैरासाइट, मतलब प्लांट यानी होस्ट के ऊपर रहेंगे भी, वहीं से पूरा न्यूट्रिशन लेंगे। इस तरह से हो सकता है वो प्लांट्स को ड्राई कर दें, सुखा दें, मार भी देते हैं। लेकिन दूसरा और भी एक तरह का पैरासाइट है प्लांट्स में, जो सिर्फ प्लांट्स पे रहेंगे और उनसे अपना
वाटर लेंगे। क्यों? क्योंकि इन प्लांट्स को, जो भी पैरासाइटिक प्लांट हैं, उनके पास ऑल प्लांट पार्ट्स नहीं है। जैसे किसी के पास रूट नहीं है, किसी के पास लीफ नहीं है, किसी के पास रूट और लीफ दोनों नहीं है, केवल स्टेम है, जैसे कि अभी बताया कस्कुटा डॉडर जिसको बोलते हैं, अमरबेल। सेकेंड वन जो होगा, उनके पास रूट्स नहीं है, उनके पास लीफ है और स्टेम है। इवन दे कैन flower, they have flower also, they are flowering plants, fruits can also grow in it. So इस तरह के प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे पार्शियल पैरासाइटिक, पार्टली जो पैरासाइट है। मतलब पानी तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और आप सबको पता है कि उसमें से 85% पानी जो है वो इवापोरेट कर देते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। तो अगर कोई दूसरा प्लांट उनसे वाटर लेता भी है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये प्लांट्स जो पार्शियल पैरासाइट्स हैं वो नोड्स पे ग्रो करते हैं। आप जरूर देखे होंगे आम, महुआ, इस सब पे एक प्लांट ग्रो करता है उनके स्टेम के नोड्स पे, उसको बोलते हैं मिशल टो। तो ये जो है ये हुआ पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे मोड हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्लांट्स में, उनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, सिम मतलब टुगेदर, बायो मीन्स लिविंग। तो जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, डिफरेंट क्लास के, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर साथ रहते हैं और एक दूसरे को की सहायता करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं जिंदा रहने के लिए, तो ऐसे में दोनों ही जब एक दूसरे को मदद कर रहा है तो एक ग्रीन होगा, एक नॉन ग्रीन होगा। जो ग्रीन होगा वो फूड बनाएगा, जो नॉन ग्रीन होगा वो या तो उनकी रक्षा करेगा, उनको कुछ प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स और या वाटर। इस तरह का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उनको सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स को सिम्बायोटिक प्लांट बोलेंगे और न्यूट्रिशन भी हो जाएगा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इनका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन में एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। अब एल्गी जो है ग्रीन है, क्लोरोफिल है, तो उसको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए फंगस ये सब काम करता है। वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड दोनों उसको भी देगा, खुद भी अपना यूटिलाइज करेगा। दूसरा है राइजोबियम बैक्टीरिया विथ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी पल्सेस प्लांट्स, पल्स ग्रुप जो लेग्यूम ग्रुप है उससे, उसके रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उनको हम राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया उनके रूट नोड्यूल्स में रहते हैं और उनको नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं ताकि वो प्रोटीन बना सके। बदले में प्लांट उनको रहने की जगह और फूड देता है। तीसरा एग्जाम्पल है सैप्रोफाइटिक, तीसरा मोड है हेटेरोट्रॉफिक में प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स के लिए, दैट इज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। आप सबको पता है बैक्टीरिया और फंजाई ग्रुप को हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मीन्स जो कभी जिंदा था, उसके बाद उसके डेथ के बाद जो उसके बॉडी का पार्ट्स है, जैसे कोई फल है, फल तो कभी पेड़ का हिस्सा था, ऑर्गेनिक मैटर है, लकड़ी है, घास फूस है, स्मॉल एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स का डेथ होता है तो उनके बॉडी का डिकम्पोजिशन होता है। ये डिकम्पोजिशन करते हैं डिकम्पोजर्स। और चौथा एक और टाइप का न्यूट्रिशन है जो स्पेशली प्रोटीन के लिए लिया जाता है। इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो
स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं, इनके पास रूट है, स्टेम है, लीव्स है, सब कुछ है, लेकिन ये ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ के मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है। अब आप सबको पता है नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो प्लांट्स उसको कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से। अब ये प्लांट्स, इनका अगर ग्रोथ ऐसी जगह पे हुआ जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, उनको कोई प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है, यानी कोई फर्टिलाइजर भी नहीं दे रहा है, तो ये प्लांट्स क्या करेंगे? तब वो एक मैकेनिज्म, एक तरह का टेक्निक हथियाते हैं और अपने लीव्स को कुछ स्पेशल टाइप के चेंजेस हो जाता है उनके लीव्स में। जैसे कुछ प्लांट्स, जैसे पिचर प्लांट, निपेंथिस नाम है उसका, उसके लीव्स को वो पिचर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। दूसरा है सनड्यू। फिर सनड्यू में प्लांट्स वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, पानी में रहने वाला इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये सब जो प्लांट्स हैं सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या करते हैं? इनके लीव्स में बहुत सारे स्पाइक्स की तरह निकला होता है और म्यूकस जो में है उस वो जब सनशाइन से एकदम शाइन करता है, तो इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्वीट स्मेल। तो निपेंथिस के घड़े से स्वीट स्मेल निकलता है, इनमें से शाइन निकलता है, तो इंसेक्ट्स उसकी तरफ चले आते हैं। जैसे ही इंसेक्ट बैठते हैं वो बंद हो जाता है। उसके बाद इंसेक्ट्स के बॉडी को वो इंजाइम्स उनके बॉडी प्लांट्स में निकलता है जो उनके बॉडी को डाइजेस्ट कर दे, तोड़ दे सिंपल फॉर्म में, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब डायरेक्टली प्रोटीन फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी। So these are some different modes or types of heterotrophic nutrition in plants. अब हम लोग पढ़ेंगे heterotrophic nutrition in animals. तो animals में, क्योंकि animals जो भी हैं वो complex food लेते हैं, hard food लेते हैं, जिसको उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत है, जिस ऑर्गन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। वी ऑल हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, मेनी एनिमल्स हैव डाइजेस्टिव। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम ही डेवलप हुआ एनिमल्स में। अब ये एनिमल्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सब के सब कॉम्प्लेक्स और हार्ड फूड, सॉलिड फूड खाते हैं। अब इस फूड को उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जूसेस एंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इनके न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, लेकिन इसमें सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, इसलिए इनको होलोजोइक बोलते हैं। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में फिर से 5 स्टेप्स में इनका फूड डाइजेस्ट होता है। पहला है इंजेशन, मतलब फूड को माउथ में लेना। फिर डाइजेशन, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तीसरा एब्जॉर्प्शन, ब्रेक हो गया सिंपल फॉर्म में तो अब उसका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होगा ब्लड से। फिर उसका एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट बचता है उसका ईजेशन होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। जो भी एनिमल्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट दे आर ऑफ 3 types, or we have classified them into 3 categories that you all know: herbivores, carnivores, omnivores. Herbivores are the organisms which feed upon the plants only. Plant parts means leaves or stem or branches or the parts of the plants they eat. Carnivores are the animals which feed on flesh of other animals. These are flesh eaters. And third one is omnivores, means both. They eat both plant and animal food. So in this way we have divided the animals into 3 categories.
one more is there, that are also carnivores, but speciality is this, that they do not kill their prey, just they eat the leftover part of the body which carnivores have killed. कार्निवोर्स जिसको मारते हैं, जितना खाना है खा लिए, बाकी जो पार्ट बचा उसको ये स्कैवेंजर्स खाते हैं। इस तरह इनको हम लोग नेचर क्लीनर भी बोलते हैं, क्योंकि ये नेचर का क्लीनिंग करते हैं।